Hello, my dear kids. How are you? Today we are going to start about a topic calculation of minimum molar mass or calculation of minimum molecular mass. Okay. In this topic, we'll straight away start with numericals because to make you understand this topic, we need to go with numericals. Okay. So, first today our discussion is calculation of minimum molecular mass. We'll straight away start this topic with a question. Now, what's the question? Question number one. Question. Or I can say like this. What is the minimum molecular mass of a compound if it contains 4% sulfur? Look at this case. What is the minimum molecular mass of a compound if it contains 4% sulfur? ठीक है, 4% sulfur. अच्छा, you have to write by mass. Okay, so that it will be more clear. By mass. Now, how to solve this minimum molecular mass? When it is asking that minimum molecular mass, it means I will consider at least one sulfur must be there. I can't say that half atom of sulfur. I can't say that 3 by 2 atoms of sulfur. And minimum at least there will be one sulfur or not. So, can I write like this? In one molecule, let us consider, you have to write let us consider because we are considering it. Let us consider in one molecule, what is the mass? Molecular mass. Let it be XAMU. Okay? There is one atom of सल्फर, isn't it? तो एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, मिनिमम एक सल्फर एटम है. ठीक है, हाफ एटम तो नहीं बोल सकते. तो इसमें क्या हो गया, 32 AMU. Mass of one sulfur is 32 AMU. And which corresponds to what? 4%, isn't it? Which corresponds to what? 4%. That means percentage of सल्फर इज इक्वल्स टू 32. टोटल मास कितना, x इंटू 100 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4. Isn't it? Now, how much is x? X is what? Molecular mass. So how much is x? X is 800. So minimum molecular mass कितना होगा, 800 AMU. आप लोग सोचेंगे सर अगर 2 सल्फर हुआ, 2 सल्फर हुआ तो ये क्या हो जाएगा 64, तो ये क्या हो जाएगा 64, तो ये क्या हो जाएगा 1600. Isn't it? जो भी होगा 800 के मल्टीपुल में ही होगा, क्योंकि एक सल्फर या 2 सल्फर या 3 सल्फर ऐसे होंगे ना, तो मॉलिक्यूलर मास 800 हो सकता है या 1600 हो सकता है या 2400 हो सकता है. पर उसने क्या पूछा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना हो सकता है. ये अगर सिर्फ एक ही एटम हुआ तो मिनिमम 800 होगा, क्योंकि हमको प्रेडिक्शन करने के लिए मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली कितना नहीं दिया गया है, मिनिमम कितना हो सकता है यह सवाल है. क्लियर? तो मिनिमम कितना हो सकता है इसमें, 800. क्लियर? कॉपी इट डाउन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉपी कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कैन आई रब द बोर्ड? Now, the question is very simple. Question is, a compound contains 4
4 atoms of iron per molecule, 4 atoms of iron per molecule of compound which is 14% by mass of the compound. Find the molecular mass. सवाल क्या है? फाइंड द मोलिकुलर मास. क्या है सवाल? एक कंपाउंड है जिसमें 4 एटम्स ऑफ आयरन है पर मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स ऑफ आयरन है, विच इज 14% बाई मास ऑफ द कंपाउंड. फाइंड द मोलिकुलर मास. और दिया गया है आयरन 56. क्लियर? और दिया गया है आयरन 56. नाउ इन दिस केस हाउ कैन आई सॉल्व? लुक हियर. नाउ आंसर. One a molecule of compound. ठीक. For example, it is XMU. Molecular mass is XMU. It contains what? 4 atoms of iron. ठीक है. क्या है इसमें? 4 atoms of iron है. 4 atoms of iron मतलब 4 into 56 AMU. अब ये क्या हो गया? क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 4 into 56 लिख सकते हैं क्या? परसेंटेज ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू 4 into 56 बाई x into 100 इज इक्वल्स टू 14. Say yes or no? 4 into 56 total mass of the iron present by total molecular mass into 100 is what? 14%. So what is x value? X is equals to 4 into 56 into 100 by 14. Clear? Doubt? Easy? तो कितना हो जाएगा approximately? 1600. क्यों? 14 4 जा 4 4 जा 16 4 जा 4 5 1600. Easy? Can I write 1600 AMU if it is given molecular mass? If it asks about molar mass कितना हो जाएगा? 1600 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं या 1600 ग्राम भी लिख सकते हैं. क्या हम लोग ऐसे पढ़े हैं पहले से? इजी? क्लियर? कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कॉपी इट डाउन. नेक्स्ट डिस्कशन इज व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन बेटा? What do you mean by a concept of chemical reaction? देख लेते हैं. What is chemical reaction? Next discussion. Chemical reaction. रिएक्शन. ओके. केमिकल रिएक्शन क्या है? जब कहीं पर कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. व्हेन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, वी से इट एज केमिकल रिएक्शन. ओके. सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हेन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन और व्हेन एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, वी से इट एज ए केमिकल रिएक्शन. लुक हियर. We can write when existing bonds are broken and new bonds are formed, we call it as a chemical reaction. एग्जाम्पल देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl.
हाउ डिड आई नो दिस इज फॉर्म्ड? बेटा, दिस इज नथिंग ऑफ योर ब्रेन, दिस all is proved by experimental fact. This is not something that I brought it from my home. This is an experimental fact. Experimental fact. Experiment से ही पता चला कि hydrogen plus chlorine gives rise to 2HCl. Now the concept comes. What here H2 means what? H is bonded to H, isn't it? Here Cl2 मतलब what? Chlorine is bonded to chlorine. Here HCl is what? Hydrogen is bonded to chlorine. So what happened here? Here H bond broke, isn't it? Cl bond broke, and this H bonded with this Cl. This H bonded with this Cl, and what is formed? HCl bond is formed. Bond breaking, isn't it? And bond forming. This entire procedure is called a chemical reaction. When existing bond breaks and new bonds are formed, we say it as chemical reaction. Added to that, what we will study? What is balancing of reactions? Balancing के बारे में और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में. अभी सिर्फ इंट्रो है कि बैलेंस क्या है, क्योंकि ये सारे चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है. दिस चैप्टर्स आर लिंक्ड टू द मोल कॉन्सेप्ट्स in order to do the chemical arithmetic of chemistry, that is mole concept, and it links up. We need to know about everything. So I am just introducing everything here. Okay. So now I will discuss what is balancing of a reaction. Do you understand what is a chemical reaction now? Existing bond को तोड़ना और नए बॉन्ड बनाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन. अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है. Next is balancing of chemical reaction. What is balancing of chemical reaction? Balancing of chemical reaction. बेटा आप लोग बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गए होंगे शायद कोविड-19 की वजह से, पर अब तो बाहर गए होंगे कभी खरीदने के लिए. तो क्या आप वेइंग बैलेंस देखे हैं ऐसे करके? वेइंग बैलेंस, ये वेइंग बैलेंस क्या है बेटा ना? अगर इस तरफ का वेट W1, इस तरफ का वेट W2, इफ W1 विल बी इक्वल टू W2, तब जाके ये बैलेंस का ये जो कांटा है पूरा बीचों बीच रहेगा. इसका मतलब क्या है? इसका वेट विल बी इक्वल टू इसका वेट. तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मतलब द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल इन बोथ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड. क्लियर? व्हाट इज बैलेंसिंग? बैलेंसिंग मतलब पहला कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड मस्ट बी सेम. बेटा रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड मस्ट बी सेम मतलब क्या होगा? H2 प्लस Cl2 gives rise to HCl. ये कौन सा साइड है? इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट साइड. और ये कौन सा साइड है? इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट साइड. ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड. क्या कहता है बैलेंसिंग? कि जितने एटम्स रहेंगे रिएक्टेंट के साइड में उतने ही एटम्स रहेंगे प्रोडक्ट के साइड में. क्लियर? कितने एटम्स है रिएक्टेंट के साइड में? देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन. यहाँ कितना हाइड्रोजन? 1. यहाँ कितना क्लोरीन? 2 क्लोरीन. यहाँ कितना क्लोरीन? 1 ही क्लोरीन. क्या ये बैलेंस है? नहीं. बैलेंस कैसे कब होगा? जब रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे. तो इसको हम लोग बहुत सारे मेथड से बैलेंस करने के लिए, पर फिलहाल जिस स्टेज में हम लोग हैं अभी सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे, ऐसे अंधाधुंध मेथड में. ठीक है? याद रखो बैलेंसिंग का पहला फंडा क्या है कि पहले आप देख लेना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे ऊपर नीचे है, फिर हम लोग प्रोसीजर लगा के
बैलेंस करेंगे। ठीक है, क्या है, अभी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो क्या हम अगर यहाँ 2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, अब 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, क्या ये बैलेंस हो गया, आया ना। सेकेंड चीज बैलेंसिंग का याद रखना होगा कि टोटल चार्ज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। और ये चीज हम लोग जब रिडक्स सेक्शन पढ़ेंगे, चार स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो ये चार स्पीसीज नहीं है, इसके बारे में हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे, ये सिर्फ इंट्रो है जो थोड़ा सा मेरे को काम है इसलिए बात कर रहा हूं। और एक चीज, KClO3 gives rise to KCl plus O2, क्या ये बैलेंस है क्या, नहीं। यहाँ एक के एक Cl एक Cl, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, कैसे बैलेंस करें, वही हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड में, देख लीजिए हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करेंगे, ऑक्सीजन पहले चीज क्या है, पहले ऑक्सीजन को हम लोग लास्ट में बैलेंस करते हैं, ये तो पोटेशियम बैलेंस है, लास्ट ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 डाल देंगे तो ये 2 KCl हो गया, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन कितना 3 2 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना 3, क्या अभी ये बैलेंस हो गया, इजी। ये सब इसको हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अंधेरे मतलब तीर जलाना, ऐसे क्यों कर गया अर्जुन जैसा, लगा तो लगा नहीं तो नहीं, बट यू हैव टू बी वेरी कंफर्म दैट द नंबर ऑफ एटम्स इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन द राइट हैंड साइड। इजी, आई बात समझ में, हाँ सही है, सुनो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोल एनालिसिस। हाँ, अगर आपको चाहिए ये टोटल चार्ज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होना चाहिए वो रिडक्स में पढ़ेंगे हम लोग, इक्वल मास कॉन्सेप्ट रिडक्स रिएक्शंस में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट डिस्कशन इज मोल एनालिसिस। क्या है ये मोल एनालिसिस, ठीक है, तो हेडिंग देते हैं मोल एनालिसिस। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एनालिसिस। नेक्स्ट इज मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस कहां हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो मोल एनालिसिस इट इज ओनली डन फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, मोल एनालिसिस इज ओनली डन फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, लिख लेते हैं, इट इज ओनली डन फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में ही हम लोग सिर्फ मोल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट must be or should be known, for reactant and product। क्या होना चाहिए, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, किसके लिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए। हो गया, अब देखो क्या है स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखे कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। क्या देखे हम लोग, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। बता दीजिए मुझे क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, थोड़ा बड़ा अक्षर में लिखूं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज टू अमोनिया। अब बताइए क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, चेक कर ले, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन नॉट बैलेंस्ड, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन नॉट बैलेंस्ड, तो बैलेंस करें, N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3, हीट एंड ट्रायल मेथड बेटा। तो देखो बैलेंस, अभी नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन
ठीक है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecule of hydrogen to give 2 molecules of ammonia। हो गया मतलब क्लियर ना। अभी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? जब हम पढ़ाएंगे इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ऐसे, ऐसा नहीं कि सिंबल गवर्नमेंट मतलब लिटरेचर में बता गया है एक्सेप्टेड, हम लोग अपने सहूलियत के लिए लिखेंगे, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है कि यहां पर कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज हो रहे हैं, क्या है, कितने मोल्स, 1 मोल। अब ये कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 3 मोल। कितना मोल्स अमोनिया बोला मिला, 2 मोल। सो व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 1 3 2। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक हुआ, अब स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ, समझ में आया, क्लियर, ठीक है। और ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको क्या आइडिया दे रहा है, ये हमको आइडिया ये दे रहा है कि कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए एंड वो कितने मोल्स के अमोनिया देता है, ठीक है। कॉपी दिस। नेक्स्ट, और नेक्स्ट डिस्कशन इज, ये हम लोग अभी जो पढ़े मोल मोल एनालिसिस, इसी का मोल मोल एनालिसिस करते हैं। क्या इसको मिलता है, ये मोल मोल एनालिसिस क्या है? इसी चीज को हम लोग वापस लिखते हैं। क्या लिखे थे हम लोग, N2 प्लस 3H2, जस्ट अ मिनट, N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3, क्लियर। N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3, ठीक है। अब बताओ इसमें स्टोकियोमेट्री कितना हुआ, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हुआ, क्या ये 1, ये 3, ये 2 है, हाँ या ना। मोल मोल एनालिसिस ये कहता है कि याद रखो हमेशा, मोल ऑफ नाइट्रोजन बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, अभी बताए थे कि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अपने सहूलियत के लिए, विल बी इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, that is equals to mole of ammonia by stoichiometric coefficient of ammonia। याद रखो, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मोल मोल एनालिसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल मोल एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस क्या कहता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन by moles of by stoichiometric coefficient of nitrogen is equals to moles of hydrogen by stoichiometric coefficient of hydrogen is equals to moles of ammonia by stoichiometric coefficient of ammonia। ये हो गया मोल मोल एनालिसिस। अगर यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, कितना है इस पर 1 N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ hydrogen by 3 equals to number of moles of ammonia by 2। Can I write like this? Yes or no? This is called mole mole analysis। Easy? हाँ? Can I rub the board? Clear? तो लिख लेते हैं और एक क्वेश्चन सवाल। Can I rub this board? Easy? और एक ऐसा ही आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमको दिया गया है a प्लस बी इज रेस टू A2B3, क्लियर। क्या दिया गया है, a प्लस बी गिव्स रेस टू A2B3। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसका मोल मोल एनालिसिस करना है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, देख लेते हैं। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं, तो पहले बैलेंस कर लेते हैं। क्या ये 2A 3B ऐसा हुआ, A2
B3, हाँ या ना बोलो। अब जाके देखिए, अगर हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे तो कैसे कितना होगा, 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ बी गिव्स राइज टू 1 मोल्स ऑफ A2B3। ये बैलेंस्ड है ना, पहले चेक कर लीजिएगा, 2A 2A 3B 3B, 2 moles of A reacts with 3 moles of B gives us to 1 moles of A2B3। अब इसका मोल मोल एनालिसिस कैसा होगा, मोल मोल एनालिसिस कितना कैसा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ये इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड मोल मोल एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मोल मोल एनालिसिस। क्या यह बात मैं ढंग से समझा पाया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? प्लीज गो थ्रू दिस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इजी, क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर एक चीज हम लोग एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई करके कुछ न्यूमेरिकल, कुछ ढंग का स्टोकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या है? अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो क्या हम एनालिसिस करेंगे, कंबशन। लेट मी रब दिस बोर्ड। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेटा हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, कितना कितना पता नहीं, एक्स और वाई ले लेते हैं। आप लोग के दिमाग में आ रहा है जिस स्टेज में आप लोग हैं कि सर ये कंबशन है क्या? कंबशन मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हम लोग इसको भी बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर बोल सकते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में होगा। कैसे अमाउंट में होगा? एक्सेस अमाउंट में, सफिशिएंट एयर होगा जिसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा। सो व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ऑक्सीजन, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। और कंबशन होने से क्या होता है? मान लीजिए एक सब्सटेंस है Z, जब वो कंबशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ZO2 में कन्वर्ट हो सकता है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये कन्वर्ट्स टू इट्स ऑक्साइड्स। ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन व्हेन बर्न्स फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड बन गया। तो कोई भी अगर बर्न करेगा ऑक्सीजन के साथ, कंबशन करेगा ऑक्सीजन के साथ, बर्न करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। अब हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या करेंगे हम लोग? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, एंड द एयर शुड बी इन एक्सेस। क्लियर? तो ध्यान दीजिए एनालिसिस को। एनालिसिस क्या है देख लीजिए। नाउ अब ये हुआ कि CXHY प्लस O2 गैस गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O। मान लीजिए प्रोसेस में रूम टेम्परेचर में कर रहा हूं। किसमें कर रहा हूं? रूम टेम्परेचर। आपको लगता है कि रूम टेम्परेचर में वाटर जो है गैस होगा? नहीं ना। रूम टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, एक बार वाटर पेपर बन गया तो रूम टेम्परेचर में वाटर पेपर वापस किस में आ जाएगा? लिक्विड में। तो हमेशा हम इसको लिक्विड में लेते हैं जब भी रिएक्शन रूम टेम्परेचर में होता है। जब भी रिएक्शन किस में होता है? रूम टेम्परेचर में होता है। हम हमेशा इसको क्या लेते हैं? लिक्विड में लेते हैं। ठीक है। नाउ अभी बैलेंस करने का मौका है। क्या करने का मौका है? बैलेंस। लेट अस बैलेंस दिस। हाउ कैन आई बैलेंस? रिमेंबर द प्रोसीजर ऑफ बैलेंसिंग। फर्स्ट बैलेंस कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, एंड एट लास्ट बैलेंस ऑक्सीजन। क्या मैंने बोला? फर्स्ट बैलेंस कार्बन,
What we are discussing? How to balance this. CXHY plus O2 will be forming whenever a hydrocarbon burns in presence of oxygen. The product is always from carbon dioxide and water. Remember this. Now, suppose we want to balance. So, what are the conditions of balancing? Always remember, first balance carbon and hydrogen, and next then balance ऑक्सीजन एट लास्ट. किसको पहले बैलेंस करना होगा? कार्बन और हाइड्रोजन को. उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को. ठीक है, समझ में? लिख लिए. फर्स्ट बैलेंस कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन बैलेंस व्हाट? ऑक्सीजन एट लास्ट. तो पहले सॉल्व करते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन, अभी कार्बन इतना, यहां कितना है? x. क्या मैं यहां पर x लिख सकता हूं? हाँ या ना बोलो अभी. फिर किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को. यहां हाइड्रोजन कितना है बेटा? y. यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2h. हाँ या ना? 2 है. क्या इसको हम y/2 लिख सकते हैं? तो क्या हो गया? y/2 टाइम्स h2 मतलब 2 इंटू y/2, so is equals to y. So अभी हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस. नाउ आई हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन. फंडामेंटल ऑफ बैलेंसिंग क्या है? इस तरफ का नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू इस तरफ का नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड will be equal to the number of atoms in the product side. What is that? Fundamental of balancing. The number of atoms in the reactant side will be equal to the number of atoms in the product side, isn't it? Now look here. ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करेंगे? मान लीजिए n ऑक्सीजन ले लिए. कितने ऑक्सीजन ले लिए? n ऑक्सीजन. तो क्या हो जाएगा? 2n इज इक्वल्स टू, यहां पर भी है ऑक्सीजन, 2x प्लस यहां पर भी है ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा? प्लस y/2, प्लस y/2. इजी. नाउ अभी बता दीजिए n क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू x प्लस y/4. हाँ या ना बोलो? n इज इक्वल्स कितना हो गया? x प्लस y/4. तो n का वैल्यू हमको मिल गया x प्लस y/4. इसी वैल्यू को लेके यहाँ पुट कर लेते हैं. तो कैसा होगा? कैसे होगा रिएक्शन? CX, थोड़ा यहाँ लिख लिए. आई वांट टू रब दिस. तो कितना हो गया? CXHY प्लस x प्लस y/4 होल इंटू और टाइम्स O2 गैस इज इक्वल्स टू क्या हो गया? XCO2 प्लस y/2 H2. अब बैलेंस है कि नहीं चेक कर लीजिएगा. इजी. सो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया? 1:x प्लस y/4 x y/. अब किसी को भी रैंडमली लेके इसको बैलेंस कर सकते हैं. देखना चाहते हैं? देख लीजिए. C2H2 प्लस O2 दिस टू CO2 प्लस H2. ठीक है. C2H2 प्लस O2 दिस टू CO2 प्लस H2. अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब देखिए x कितना है? 2. y कितना है? 2. तो यहां पर क्या हो जाएगा? x प्लस y/2. x कितना है? 2. y कितना है? 2. 2/4 कितना हो जाएगा? 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2. तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 2.5. यस और नो? कितना हो जाएगा? 2.5. और ये कितना हो जाएगा? ये x है ना, x 2, ये y/2 मतलब 1 हो गया. 2/2 1. अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? होल नंबर 2CH2 प्लस 5O2 गिव्स राइज टू 4CO2 प्लस 2H2O. समझ में आ रहा है क्या? क्या मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखिए कितने कार्बन? 4 कार्बन. इसमें 4 कार्बन. इसमें कितना हाइड्रोजन? 5 to 10 हाइड्रोजन. इसमें कितना हाइड्रोजन? 2 to 4. बैलेंस हुआ क्या? सॉरी, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा?
सॉरी यहाँ पाइप गलती से लिख लिया बेटा, 2 कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 2 जा 4, इतना कितना हाइड्रोजन 4, यहाँ कितना ऑक्सीजन 5 2 जा 10, यहाँ कितना ऑक्सीजन 4 2 जा 8 प्लस 2 10, बैलेंस्ड। आई बात समझ में? तो ये जनरल फॉर्मूला होगा, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। सेशन हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इजी? डाउट? हाँ, नाउ लेट अस गो फॉर द केस एनालिसिस ऑफ दिस मोल एनालिसिस। केस 1, व्हाट इज केस 1? इन केस ऑफ केस 1 analysis, if the moles taken or if the moles of reactant taken, moles of reactant taken has the same ratio, has the same ratio as the stoichiometric coefficient ratio, then the entire reactant is consumed. Then the entire reactant is consumed. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला मैंने? अगर द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट जो लिया गया है उसका रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स उसका जो रेशियोस है अगर वो सेम हुए तो बकायदा पूरा का पूरा रिएक्टेंट्स यूज हो जाएगा। क्लियर? पूरा का पूरा रिएक्टेंट्स यूज हो जाएगा। देख लीजिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज और हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, लिख सकते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड when 3 moles of nitrogen react with 9 moles of हाइड्रोजन। ये है सवाल। देखो बच्चा, ये सब क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको इनऑर्गेनिक जानना जरूरी है। और इनऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे कब? 11th में है एस ब्लॉक, 12th में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारे रिएक्शन जानना जरूरी है। जब तक ये रिएक्शन आपको पता नहीं, इसका सोल्यूशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। पर इस स्टेज में, इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा रिएक्शंस याद करना पड़ेगा। और वैसे भी ये जो सवाल दिया गया है, ये सवाल में हमको बकायदा पता चलता है कि अमोनिया बन रहा है कहां से? ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो रिएक्शन कैसा हो गया? इसका सोल्यूशन कैसा होगा? रिएक्शन कैसा हो गया? N2 प्लस H2 गिव्स H2 NH3। अगर बैलेंस करने निकले तो N2 2N2 गिव्स H2 6 हाइड्रोजन, तो 3H2 गिव्स H2 2NH3। तो यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया? 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। इसका मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यही है ना? अब हमको जो मोल्स दिया गया है कितना? 9 मोल्स, और इसमें कितना दिया गया है? 3 मोल्स। मोल्स टेकन इनिशियली, मोल्स टेकन कितना? 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 9 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका रेशियो देख लीजिए 1:3, इसका रेशियो 3:9 और वही 1:3। When both the ratios are same, we can say that all the reactants are consumed, मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट यूज हो गए। क्लियर? अब ये सवाल आसान था, आप लोग यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 मोल इज टेकिंग 3 मोल्स गिविंग 2 मोल्स, so 3 moles will give how much? 1 is giving 2, 3 moles will give 6 moles, because ये entirely consumed हो गया। या यहां से भी कर सकते हैं 3 mole is giving 2 mole,
9 will give 6 moles. पर जब कॉम्प्लेक्स वाला रिएक्शंस देगा तब यूनिटरी मेथड में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलती हो जाएगा। तो उस टाइम हम लोग मोल मोल एनालिसिस के ऊपर भरोसा करेंगे। अगर मोल मोल एनालिसिस करेंगे, कैसा है मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस कैसा है, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब बताइए नाइट्रोजन का 3 मोल 3/1 इज इक्वल्स टू n अमोनिया बाय 2, सो n अमोनिया इज इक्वल्स टू 3 to 6, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना हो गया यहाँ पर 6। इजी था, कितना अमोनिया निकलेगा यहाँ से 6। इजी, डाउट? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट दी, मिटाएं इसको, इजी। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ A2B3C4। देख लीजिए क्या है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3C4 फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन भी उसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन हुआ, जस्ट इजी है। फॉर्म्ड व्हेन बाय द रिएक्शन ऑफ 0.6 मोल, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 0.6 मोल ऑफ A, 0.9 मोल of B and 1.2 मोल of C। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले A प्लस B प्लस C प्लस C gives us to A2B3C4, A2B3C4। Now in these cases, tell me how to balance it. Is it 2A, 3B, 4C? अब stoichiometric coefficient 2:3:4 2:3:4 is the stoichiometric coefficient. Now moles taken कितना है 0.6, यहां पर कितना 0.9, यहां पर 1.2। क्या ये रेशियो सेम है, देख लीजिए 0.2:3, 6/9 is 2:3, 3:4, 9/1.2 is also the same ratio, isn't it? So the ratios are same. Now the question is, this is giving how many moles? 1 moles, isn't it? Now the question is, how many moles of A2B3C4 is formed? Mole analysis. What will happen in mole analysis? Look here. Number of moles of A by stoichiometric coefficient 2 equal number of moles of B stoichiometric coefficient 3 equal number of moles of C by stoichiometric coefficient 4 is equal to number of moles of A2B3C4 by stoichiometric coefficient 1. Now the question is that here as the ratios of the stoichiometric coefficients and moles taken are same, so I can say all the reactants are consumed, मतलब 0.6, 0.9 and 1.2 entirely they will be consumed. Now number of moles of A2B3C4 is asked, so 0.6/2 is equals to how much? 0.3,
So how much A2B3 will be formed? 0.3. And is simple. 2 mole is giving 1 mole. 0.6 will give 0.3. Inter method. Here in this case you are seeing that inter method is more easy. But remember, in case of complex, you will in a problem. So did you understand this? Third question of case 1. Third variety of the question. Copy this. What is the third variety? What is the third variety? Can I rub the board? Third question. Now, the third question. What is the third question? What is the mass of oxygen released? What is the mass of oxygen released when 245 gram of KClO3 is heated? Okay, and in bracket is given K is equals to 39, Cl 35.5 and oxygen 16. What is the mass of oxygen released? Now solution. You need to know, again I will say, you need to know the inorganic part, the reactions part. Here in this stage you need to remember this, but once you study in 11th class and 12th class the inorganic part, the family part, there will be, you will be very clear about this. KClO3 gives rise to what? KCl plus O2. Now please balance it. 2 KClO3 gives rise to 2 KCl plus 3 O2. Is it balanced now? 2 KCl, 2 KCl, 3 2 is 6, 3 2 is 6 oxygen. Okay. Now, stoichiometric coefficient 2 is to 3. Now here only one reactant is there. Here there is no discussion of ratios and all. Okay? Here only one KClO3 there and it will be completely reacted. Now, in this case, we know that number of moles of KClO3, mole analysis. Mole analysis. Number of moles of KClO3 by 2 is equals to number of moles of KCl by 2 equals number of moles of oxygen by 3. Now, number of moles of KClO3, question is, what is the mass of oxygen released? Now, very simple. Number of moles of KClO3, first I have to find out how much KClO3 is taken. Here, KClO3, number of moles is equals to by 18 gram, how much taken? 245 gram. What is the molar mass of KClO3? Potassium 39, chlorine 35.5, oxygen 16 into 3. It comes around 122.5. Number of moles is equals to 2. Now here, number of moles of KClO3 using this concept, 2 by 2 is equals to number of moles of oxygen by 3. Yes or no? So number of moles of oxygen, this is formed, is equals to how much? 3 moles. 3 mole matlab, each mole is how much? Number of moles is what? Weight in gram. And write this also, weight in gram by molecular mass. So 3 mole is how much? 3 into molar mass. 3 into how much oxygen? 3 moles of O2. 3 into 32. 96 gram is the amount of oxygen formed. Easy. Now we'll go for the analysis of case 2. What is case 2? Let us study this case 2. Next, case 2. What is there in case 2? If the number of moles taken and the stoichiometric coefficients ratio are not same. In case 1, what did I take? The number of moles taken and the stoichiometric coefficient ratio were same. Therefore, all the reactants were consumed in case 1. But in case 2, if the number of moles of
reactant taken and the stoichiometric coefficient ratio are not same, then one of the reactant is completely consumed. Then one of the reactant is completely consumed and it is called limiting reagent. जो रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट. एंड द लेफ्ट ओवर reactant is called excess reagent. जैसे ER लिख सकते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग LR लिख सकते हैं. क्लियर? हम लोग क्या लिख सकते हैं, LR लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन A plus 2B gives rise to C. अब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1:2. रेशियो कितना है, 1:2. मान लीजिए मोल्स टेकन इज 2 moles and here 1000 moles. अब बताइए 1 mole रिक्वायर 2 moles, 2 mole will require 4 mole in inter method. तो खत्म कौन हो जाएगा, ये रह जाएगा कौन, ये. The one which will be completed is this one, A. That one will be left over is B. So that means this is what, this is limiting reagent. This is what, this is excess reagent. Clear? This is excess reagent and this is limiting reagent. Now the question comes, how to find the limiting reagent. So let me copy this. Let me tell you how to find the method to find limiting reagent. Can I have this? Method to find the limiting reagent. Method to find the limiting reagent. ध्यान देना. What is the method to find the limiting reagent? Let us take an example. What is that? For example, A plus 2B gives rise to C. Now, tell me what is the stoichiometric coefficient? 1, 2. Suppose moles taken are 5 moles and 20 moles. Now question is, how moles C is formed? How many moles of C are formed? In that case, first, how to find the limiting reagent? Divide the moles taken with the stoichiometric coefficient. Divide the moles taken with the stoichiometric coefficient. Moles taken with the stoichiometric coefficient. रूल नंबर 1 क्या है, यहीं पर लिख लेता हूं. रूल नंबर 1 यह है कि डिवाइड द मोल्स टेकन विथ stoichiometric coefficient. Okay, and the minimum value will be the limiting reagent. इनमें से जिसका वैल्यू मिनिमम होगा वही लिमिटिंग
रिएजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पर कितना हो गया 10, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये ए लिमिटिंग रिएजेंट है और बी क्या है, बी एक्सेस रिएजेंट। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। इन दैट केस राइट द मोल मोल एनालिसिस एंड पुट द लिमिटिंग रिएजेंट इनटू रिलेशन। क्या करना है, राइट द मोल मोल एनालिसिस एंड पुट द लिमिटिंग रिएजेंट वैल्यू फॉर कैलकुलेशन। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेशन में डालेंगे, क्योंकि वही एक है जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1। अब ये तो एक्सेस है, इसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, तो सिर्फ 5/1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाई 1, isn't it? Now number of moles of C formed is how much, 5. So number of moles of C formed is 5. अब number of moles of C formed is 5. अब बताइए अगर हम लोग इसको एनालिसिस में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बाई 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C बाई 1। बताइए अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना कंज्यूम हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना 5, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना हो जाएगा 5 to the 10। सो अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, 5 हुआ ना अभी, देखिए 5, इसको हम लोग एक्शन में लेंगे, सो 5/1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई 2 कितना हो जाएगा 10। So number of moles of B consumed is 10. Number of moles of B left, or I can say the residue, if it is a solid or like that, left, ठीक है, और unreacted तो कितना हो जाएगा, था पहले से कितना 20, इस्तेमाल कितना हो गया 10, लेफ्ट कितना हो गया 10। इजी, डन, क्लियर। हाँ, let us go for the next discussion or the next question. Now the next question is, can I rub the board? Next question on this basis. Next question is very simple. If A plus B gives rise to A2B3, A plus B gives rise to A2B3. क्वेश्चन ये है कि इनिशियली 6 moles of A and 20 moles of B are taken. Initially 6 moles of A and 20 moles of a B are taken. Then find option 1 LR, और LR क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट, and option B moles of A, B and A2 B3 left, and moles of A, B and A2 B3 ऐसे लिख लेते हैं आफ्टर रिएक्शन। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, पहले रिएक्शन क्या है, A प्लस बी गिव्स राइज टू A2B3। क्या ये बैलेंस्ड है? मैंने बताया कि मोल मोल एनालिसिस किसको इस्तेमाल करेंगे, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को, इजंट इट। अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे, 2A प्लस 3B गिव्स राइज टू A2B3, 2A प्लस 3B गिव्स राइज टू A2B3 बैलेंस्ड। अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया, 2:3:1। अभी हम लोग इसका अगर लिमिटिंग रिएजेंट बाहर निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितना, और ऐसे लिख सकते हैं मोल्स टेकन कितना हो गया
6 मोल्स और इसमें 20 मोल्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए पहला स्ट्रेटजी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इससे हमको क्या मिलेगा, इसका हमको जो मिनिमम वैल्यू इसका आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 6/2 इज इक्वल्स टू 3, 3/20 इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ए है। तो पूरा खत्म कौन हो जाएगा, ए, रह जाएगा कौन, बी। अब देखिए मोल एनालिसिस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू बी 3 बाई 1। अब बताइए सेकंड स्ट्रेटजी क्या है कि जो लिमिटिंग है उसी को फॉर्मूले में लेना है, उसी को कैलकुलेशन में लेना है। लिमिटिंग वन शुड बी टेकन इनटू रिलेशन। तो इसको कैलकुलेशन में ले लिए। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है, 6/2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टू बी 3 निकालना है, कितना हो गया 3। टेसन नो इजी, 2 मोल इज गिविंग 1 मोल, 6 मोल विल गिव 3 मोल। तो इंटर मेथड से भी करेक्ट। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई 3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 6/2 इज इक्वल्स टू कितना है 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। 2 moles require 3 moles, 6 mole will require 9 moles. Number of moles of B consumed कितना 9। Number of moles of B left or unreacted is equals to 20 लिया था ना, 20 minus 9 कितना हो गया 11। इजी, कितना नंबर मोल्स रह गया B का 11। इजी कैलकुलेशन, नहीं प्रॉब्लम। 20 लिए थे, 9 इस्तेमाल हो गया, 11 रह गया। इजी। और एक क्वेश्चन, हाँ बताइए, और एक क्वेश्चन लीजिए, और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, कैन आई रब दिस बोर्ड, क्वेश्चन ये है कि 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ, देखो एल्युमिनियम याद है आपको, यहां पर एटॉमिक नंबर कभी कभी याद करना पड़ता है, कभी कभी ये लोग दे भी देते हैं। रिएक्ट्स विथ 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, रिएक्ट्स विथ 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म Al2O3. Aluminium reacts with oxygen to form Al2O3. Calculate the mass of Al2O3 formed. Calculate the mass of Al2O3 formed. Again, I will tell you, dear my dear kids, we are discussing chemical arithmetic. ये सारे के सारे मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल अरिथमेटिक सब एक ही चीज है। मतलब मोल कॉन्सेप्ट के अंडर हम लोग डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं कि मोल कॉन्सेप्ट एक बार में खत्म हो गया। ये सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड हैं। इनऑर्गेनिक अगर आपको पता नहीं तो ये रिएक्शंस आपको आपसे नहीं होगा। फिलहाल इस स्टेज में आपको ये रिएक्शंस थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते नहीं है। क्लियर? अब शुरू करें। अब देख लीजिए, पहले हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम निकालना होगा। मास इन ग्राम बाय मोलर मास, कितना मोल हो गया 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना होगा 320/32, कितना हो गया 10 मोल्स। क्लियर? आई बात समझ में? नंबर ऑफ मोल्स टेकन मिल गया हमको ना। अभी बैलेंस करना होगा इक्वेशन को। हम लोग को दिया गया एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू Al2O3। कैसे बैलेंस करें? क्या ऐसे कर सकते हैं 4Al
equals to 2, 3, 3 to the 6, 3 to the 6 oxygen, 4 aluminium, 4 aluminium, balanced. Now stoichiometric coefficients कितना है 4:3. अभी moles taken कितना हो गया, सॉरी कितना लिया हमने 2 मोल्स, यहाँ पर कितना ले लिए ऑक्सीजन 10 मोल्स. ये रेशियो तो सेम नहीं है, तो इसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा. कैसे निकालेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स टेकन बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स टेकन बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये 1/2 नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये 10/3. तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस इज एक्सेस रिएजेंट, इजंट इट. जो सबसे कम देगा वही होगा एक्सेस रिएजेंट. नाउ मोल एनालिसिस कैसा होगा, मोल एनालिसिस कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम बाई 4 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाई 3 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 बाई 2. इन केसेस में क्या होना चाहिए बेटा, हमको सिर्फ जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको रिलेशनशिप में लेना है. तो ये पूछा गया कैलकुलेट द मास ऑफ Al2O3, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 निकाल दे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम बाई 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 बाई 2. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कितना 4, सॉरी टेकन राइट 2/4 इंटू 2. तो ये 2 2 जा 4 कितना हो गया 1 मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया. तो मास कितना होगा, मास इज इक्वल टू मोलर मास 1 मोल ऑफ Al2O3. Al2O3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 कितना हो जाएगा 102. कैसे पता चला, Al2O3 का 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 54, ऑक्सीजन 48, 54 48 102 इजी. अब इसमें आ जाते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इस फॉर्मूला से, 2/4 इंटू 3, 2/4 इंटू 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2/4 इंटू 3. कर सकते हैं इसमें से, हाँ या ना बोलो, कितना हो जाएगा वो 2/4 इंटू 3 to the 6/4. So it is approximately 1.5 moles, isn't it? Not given. Still, you understand this? So here we discussed today about limiting reagent, excessive reagent, and here we are in the verge of completion of this part. Okay. In the next class, we'll go for further analysis of the mole concept with the discussion of percentage yield. We'll be continuing this mole concept, or I can say chemical arithmetic, for more 5 to 6 lectures. Okay. So till then, bye bye, take care and keep studying. Thank you.